Hello everyone, welcome back. So today we will start with a new topic and the topic is terms of payment. Fine. What do we mean by terms of payment? As you all know, while creating the vendor master data, we have assigned 0001 as a terms of payment, right? And what does it mean? It meant that the invoice will be due on the same day, correct? Now it's not necessary, say are many vendors. Okay? There are many vendors for an organization which from whom we keep on dealing, like some usual thing, very unusual things, for like petty expenses and all, and sometimes it's required even a approval. So this concept I have explained you in case of PO and a non-PO invoice. Fine. Here I want to say that in case if there are many vendors, it's not necessary that for every vendor the terms of payment will be same. Definitely, few vendors there can be situation where some vendor can want that the invoice to be due on the same day. Fine. We can use already either the existing standard terms of payment or we can create our own as well. So for some, it could be one day as terms of payment. It generally doesn't happen like in the same day until and unless if it's a very small transaction. But if the transaction worth is like big, then definitely we don't give just one day to our client to make the payment. Definitely for a big sum amount they need some time period in order to repay the amount to the vendor, because even in any organization whatever liquidity means the available cash, it's not like kept aside or reserved. It keeps on rotating. It keeps on using in like as a working expenditure for day-to-day transactions, so that there is too much of inflow and outflow of the cash in a big organization or in an organization. So definitely when it comes to the question of liquidity part, we can't just say that it's a very small amount. Say for example, if client has purchased from a vendor some goods or able any services which is of big amount, that doesn't mean we just give a small time period and that too just for a day to make the payment. It doesn't go this way. Otherwise why the client will go to you, or why the client will purchase from vendor A? At least he will go to those vendors who can give a particular time period, in order to make the payment of such a big amount. So that's what. So definitely different vendors has different terms of payment. For say, I'm just giving an hypothetical situation that for vendor A, if it say it's one day, it's not necessary that for vendor B it be the same. It could be 30 days, it could be 45 days, and so on. Okay? So we have to assign it in the vendor master itself, so that SAP comes to know that when the invoice has to be ड्यू, राइट? अगर आप ये सोचो कि आप एक एक वेंडर को मैनुअली जाके लिखो, तो एक तो डेफिनेटली देयर आर एरर ऑफ, मतलब देयर आर चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि आप हर बार जाके ए के लिए 0001, बी के लिए सपोज आपने कुछ यू हैव created your own terms of payment for 30 days, say ZD 30, ठीक है, सी के लिए ZE 45, तो आप मैनुअली करो बार बार, यू हैव टू गो थ्रू कि वेंडर ए का क्या था टर्म्स ऑफ पेमेंट, वेंडर बी का क्या था, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वेंडर ए और बी हो, देयर कुड बी मेनी वेंडर्स। तो मैनुअली करने से अच्छा है ऐसा क्यों ना करे कि हम पहले टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट कर ले, और उस टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट कर ले, फर्स्ट टर्म्स ऑफ पेमेंट create कर ले, and later we assign it to the respective vendor master. Clear?
तो फिर बार बार हमें क्या होगा, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस है, से फॉर एग्जांपल अगर वेंडर है अब ये बोल देते नहीं 1 डे नहीं, हम आपको 20 डेज देते, ओके फाइन, वी कैन क्रिएट ए न्यू टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड देन वी कैन असाइन दिस टर्म्स ऑफ पेमेंट टू दिस पर्टिकुलर वेंडर मास्टर। दैट इज मोर इजी राइट एंड मोर एक्यूरेट एज वेल। सो अभी हम क्या करते हैं, सो व्हाट वी कैन से टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक कस्टमर और वेंडर के बीच में एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना, या यू कैन से एग्रीमेंट होना, वेयर द वेंडर एंड कस्टमर, कस्टमर मीन्स द क्लाइंट, जो वी पीपल है ना, वी, तो हमारे बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है कि अगर हम कोई वेंडर से कोई सर्विस लेते हैं या फिर हम कोई सामान परचेज करते हैं, तो वो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम पे करें, वही टर्म्स ऑफ पेमेंट कहलाता है। और ये एक तो हमारा क्या बताता है, ड्यू डेट बताता है, राइट, कि क्या ड्यू डेट है, एक इनवॉइस कब ड्यू हो रहा है। दूसरा, कभी कभी डेफिनेटली आप ये भी देखोगे, अगर कुछ वेंडर ऐसे भी होते हैं कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो, सपोज अगर आपका 30 डेज का टाइम पीरियड है, लेकिन आप 30 डेज नहीं लगाते हो और आप 20 डेज के अंदर पे कर देते हो, तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे आपके इनवॉइस अमाउंट में। तो ये ये भी कब होता है, ये भी रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ पेमेंट है। तो टर्म्स ऑफ पेमेंट इज व्हाट, टर्म्स ऑफ पेमेंट इज बेसिकली इट refer to the time period which has been decided between the customer and the vendor, that when the invoice will be due, and also it also calculate the discount as well, the cash discount available provided if the वेंडर इनवॉइस, कुछ वेंडर और कस्टमर के बीच में ऐसे एग्रीमेंट हो जाए कि अगर आप सपोज जो ड्यू डेट है और ड्यू डेट से पहले अगर आप इतने दिनों के अंदर पे कर देते हो, तो वी विल गिव यू a certain discount as well. So due date and the cash discount are the important attributes for terms of payment. Hope it is clear now. Now what we will do first, let's, and now what we will do, we will take one, you can say condition, right? It will help us to understand in this way. Condition number one is what, the normal due date or terms of payment, like the normal, there is nothing like tough to understand this. It's just very simple, that there is a particular vendor, and say for example we have purchased or availed any services from that particular vendor, and it is decided that the invoice will be due in 30 days, or say 31 days or 45 days. So first what we will do, first we will create list. Let's first log into our SAP. Fine. So you all know that I have already created a vendor with 7001, right? For the company code is ZD89, and come to payment transaction and just press enter. Can you see here? Huh? It is 0001. But now say we will change this same vendor. Okay. So what we can do, first of all, it is in the editable, non-editable mode. Can you see it? It is in the non-editable mode format. So there could be two way. First, we have to check OBD4, because account group control the field of vendor master data. Where is my chart of account? Okay, so it control the OBD4, it's control the number, and slash n OBAS is the
number range. Fine. Slash n op d3. This is the vendor account group, correct? OB D4 is for GL account group, GL master data. OB D3 is for vendor master data, ZD 89. So either first come to this and just check the payment transaction. It is optional here. So what can be the another way where we can check? I have explained you OB23, right? And just come to change vendor centrally, company code, and come to payment transaction. Can you see here? It is in display mode. I will make it as an optional and control S. Now, how I reach to OB23, what you all are like, if you are new to my video, definitely you will not understand, and explaining again and again the same thing, it's not possible for me as well, because it will be never ending process. So if you are new to my video, kindly check all my previous video where there is a complete detailed explanation about how the vendor account group is controlled and how it is controlled, and in case if something is in display mode, how to make it as an optional. So please go check my previous video and sure you will understand the entire thing. So nowadays what I have made it optional. Now again let's come to slash n sk02, enter. Now can you see I can make the necessary changes here. So before making the necessary changes, definitely I have to create my payment terms as well, right? Terms of payment as well. So see, if you select here, there are various terms of payment. You can see 0, 0001, 0002, 0003, and all terms of payment are of different conditions. Fine. So as of now, I want that for vendor 711, the terms of payment to be 30 days. Fine. 30 days के अंदर जो भी इनवॉइस है वो ड्यू होना है एंड उसका पेमेंट हम उस दिन कर देंगे. तो अगर ये करना है तो फर्स्ट चलो हम टर्म्स ऑफ पेमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज बिफोर मेंशनिंग anything like 30 days terms of payment, definitely before writing down here I have to create it, right? So how I will create the terms of payment for 30 days? Come to transaction code, come to transaction code OBB8. Fine, just press enter. Can you see here terms of payment? So what I will do, come to new entries. Now this all I will explain you in different condition. As of now, the condition number one is that the normal due date, whether it could be 20, 30, 15, 5 days, 7 days, I am taking 30 days. Fine. So the condition number one is 30 days, and as I will progress, definitely I will cover each and everything, whatever is mentioned here. So first, let's create 30 days. Now it's all on you what terms of payment you want to create for 30 days. It could be any four digit, 1, 2, 3, 4, or any alphanumeric. It's your choice. I will keep the same, not same, I will keep like ZE 30. So I will keep ZE 30 so that it become easy for me. Okay, it's for Z Entertainment and terms of payment is 30 days. You in your case can give any four digit numerical, alphabetical, alphanumeric, it's your choice. ठीक है. Now अकाउंट टाइप, डेफिनेटली अगर वेंडर के लिए टर्म्स ऑफ पेमेंट है तो कस्टमर के लिए भी तो टर्म्स ऑफ पेमेंट होगा, करेक्ट? तो इधर यू कैन अनचेक इट बिकॉज अभी हम वेंडर का ही कर रहे हैं, बट अगर आप रहने भी दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सो टर्म्स ऑफ पेमेंट इज अप्लाइड इन टू vendor also and customer also. Fine.
नाउ दिस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, दिस ब्लॉक वाला बाद में समझेंगे. नाउ डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन डे. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट दिस. सी व्हाट डू यू मीन बाय बेसलाइन डेट? क्या होता है इसका मतलब? बेसलाइन डेट का ये मतलब होता है डेट फ्रॉम विच ड्यू डेट इज टू बी कैलकुलेटेड. कैलकुलेटेड ये क्या होता है? क्या, लेट मी एक्सप्लेन यू. अब क्या है ना, अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे ना, तो यू विल फाइंड फोर काइंड्स ऑफ बेसलाइन डेट. व्हाट इज दिस? डॉक्यूमेंट डेट, posting date, entry date, and another one is no default. ठीक है. अब क्या मतलब होता है इन सब का? चलो समझते हैं. डॉक्यूमेंट डेट नाम से ही पता चल रहा है. डॉक्यूमेंट डेट इज द इनवॉइस डेट. ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डेट भी बोल सकते हो और कितने लोग इनवॉइस डेट भी बोलते हैं. बोथ आर सेम. ठीक है. बेसलाइन डेट, ठीक है. डॉक्यूमेंट डेट एंड इनवॉइस डेट आर सेम. व्हाट इज डॉक्यूमेंट डेट एंड इनवॉइस डेट? मतलब जिस दिन इनवॉइस बन के आया ना, सपोज अगर हमने वेंडर से कुछ परचेज किया, ठीक है, अक्टूबर 1 को हमारा इनवॉइस प्रिंट होके आ गया. ठीक है. मतलब उस इनवॉइस में डेट कब का दिया हुआ है? अक्टूबर 1 का. ठीक है. इस दिन हमने वेंडर को, वी हैव गिवन द परचेज ऑर्डर एंड वेंडर ने उस परचेज ऑर्डर के बेस पे हमें एक इनवॉइस दे दिया. दे हैव इवन सप्लाइड अस द गुड्स एज वेल द इनवॉइस. तो इनवॉइस में इस दिन का डेट मेंशन्ड है. तो वो जो डेट होगा ना, वो हमारा क्या होता है? डॉक्यूमेंट डेट होता है या इनवॉइस डेट होता है. ठीक है. पोस्टिंग डेट क्या होता है? पोस्टिंग डेट होता है कि अब अगर आप ये सोचो से, पोस्टिंग डेट इज बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि इस डेट से हमारा एक तो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होता है. फाइनेंशियल रिपोर्ट हम तैयार करते हैं. ये हमारा फाइनेंस को इम्पैक्ट करता है. इट इम्पैक्ट द फाइनेंस, इम्पैक्ट द फाइनेंस. ठीक है. जो जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि से अगर आपने कोई इनवॉइस है ना, आपका अक्टूबर 1 का है. अब अक्टूबर कौन से पीरियड का होता है? अगर आप अप्रैल से काउंट करो एज ए फर्स्ट पीरियड, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इज द सेवेंथ पीरियड. करेक्ट. हाउ इट इज द सेवेंथ पीरियड? इफ यू वांट टू चेक, just come to OB 29 fiscal year ZE. Come to this, double click on it. Can you see? As per the April to March, the setting में हमारा सेवेंथ पीरियड है अक्टूबर. अब से फॉर एग्जाम्पल कोई भी इनवॉइस है, उस पर्टिकुलर पीरियड में ही रिकॉर्ड होना है. ठीक है. इस पर्टिकुलर पीरियड में ही रिकॉर्ड होना है अक्टूबर का. या आप ऐसा समझ लो कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वे. एक इनवॉइस था जो 30th सितंबर को और यू से 25th सितंबर को
मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर रही हूँ सो दैट एक इजीली आप लोग को समझ में आ जाए, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये पोस्टिंग डेट और एंट्री डेट के बीच में। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस है इस पोस्टिंग और एंट्री डेट के बीच में, मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये सोचो, से फॉर एग्जाम्पल 25 सितंबर को हमें कोई सामान मिला, वो इनवॉइस प्रिंट होके आया इस डेट को। ठीक है, अब क्या है, सितंबर का इनवॉइस सितंबर को ही पोस्ट होना है, इसी पीरियड में पोस्ट होना है, इसी पीरियड में पोस्टिंग होनी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा जो पोस्टिंग डेट होता है ना, ये डिटरमाइन करता है क्या, फाइनेंशियल पोस्टिंग रिपोर्ट को, ये इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट को। अगर सपोज आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, तो आपको इसी मंथ के एक्सपेंस में दिखाना होगा ना, सितंबर पीरियड के मंथ के एक्सपेंस में दिखाना होगा। करेक्ट? तो अगर आपको सितंबर का इनवॉइस सितंबर में ही इम्पैक्ट होना है, तो डेफिनेटली हमारा तभी पॉसिबल होगा जब हम पोस्टिंग डेट उस तारीख को उस पर्टिकुलर सितंबर पीरियड में करेंगे। करेक्ट? करेक्ट है। तो मेनली हम क्या बोल सकते हैं कि पोस्टिंग डेट हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट हेल्प अस टू डिसाइड कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी के अकाउंट में इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और क्योंकि हमें करवाना है, क्योंकि अगर कोई सितंबर का इनवॉइस है तो वो सितंबर में ही शो होना चाहिए उसके एक्सपेंस अकाउंट में, हम अक्टूबर में नहीं शो कर सकते हैं। करेक्ट? सो वो जो डेट होती है ना, अब सपोज 25 सितंबर को हमें इनवॉइस मिला, हमने इस इनवॉइस को एक्चुअल में हमें सितंबर के पीरियड में शो करना है, तो हमने सपोज 26 सितंबर को वी हैव रिसीव्ड द इनवॉइस। ठीक है, ये तो 25 सितंबर को इनवॉइस उन्होंने डिलीवर किया, किसने, वेंडर ने, किस डेट पे, इस डेट पे, चाहे ये कुछ भी डेट हो। ठीक है, ये हमारा डॉक्यूमेंट डेट है। अब सितंबर से रिलेटेड अगर कोई भी इनवॉइस है, वो हमारा सितंबर पीरियड में ही इम्पैक्ट होना चाहिए। तो एक्चुअल में हमें कब मिला ये इनवॉइस, 26 सितंबर को मिला। ठीक है, और हमें सितंबर में ही इसको रिकॉर्ड करना है। करेक्ट? सितंबर में ही शो करना है। तो जिस दिन हमें वो इनवॉइस मिलेगा ना, डेफिनेटली द वेंडर विल कम टू नो, they will get an intimation, and our time period will start from when, from September itself, from 26 September। तो अगर हमें 26 September को कोई इनवॉइस मिला, हाँ, और हमारा अगर ड्यू डेट 30 डेज का है, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा ड्यू कब होगा, 26 अक्टूबर। करेक्ट? 26 अक्टूबर में ये हमारा ड्यू हो जाएगा। तो डजेंट मैटर कि आप एक्चुअल में सिस्टम में कब एंट्री कर रहे हो। अगर से फॉर एग्जाम्पल बाय मिस्टेक, हेलो, या से फॉर एग्जाम्पल इफ बाय मिस्टेक आपका है ना 26 सितंबर को इनवॉइस आपको मिला, एंड आपने गलती से उसको एंट्री करने के लिए आप भूल गए। एंट्री मीन्स द इनवॉइस हैज टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम, राइट, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इनटू द एसएपी सिस्टम। और आपको 1 अक्टूबर को याद आया कि मेरा एक इनवॉइस था जो मुझे रिकॉर्ड करना था। तो इट डजेंट मैटर आप उसको रिकॉर्ड कब कर रहे हो, मतलब आप 1 अक्टूबर को आपने एंट्री किया, ठीक है, लेकिन हमारा जो वेंडर है ना, वो सितंबर से ही काउंट करेगा। एंड फिर डेफिनेटली अगर आप जैसे मैंने आप लोग को बताया था ओपन एंड क्लोजिंग पोस्टिंग पीरियड, करें, अगर आप सितंबर का इनवॉइस अक्टूबर में करोगे, तो डेफिनेटली ऐसे तो आप बहुत मिसयूज कर लोगे, हर पुराने इनवॉइसेस आप कभी भी एंट्री करो, क्या मतलब है, ये तो कोई तरीका है नहीं, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पीरियड एंड हो जाते हैं, जो अब मैंने आप लोग को समझाया था ना, फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम
12 महीना ओपन करके नहीं रखते। ऐसे तो क्या होगा, बहुत मिसयूज हो जाएगा। आज आप खुद सोचो, 26 सितंबर का कोई इनवॉइस अगर आप 1 अक्टूबर को कर रहे हो, दैट मीन्स कोई आदमी प्रोफेशनल रीजन ही नहीं है। आपको कोई इनवॉइस मिली, आपको सितंबर में रिकॉर्ड करना था, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सितंबर में पड़ना है। और अगर आप अक्टूबर में करोगे, दैट मीन्स तो जितने भी आप है ना आपके डिलेड या बैक डेटेड जितने भी इनवॉइसेस होंगे, आपको जब मन आए चाहे आप एंट्री कर दोगे। इसलिए उस सिस्टम में ये ऑप्शन होता है कि ओपन एंड क्लोजिंग द पोस्टिंग पीरियड, और हर कोई उसको, एंड होप यू ऑल रिमेंबर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑथोराइज्ड ग्रुपिंग कोड, करेक्ट? ऑथोराइज्ड ग्रुप कोड विच इज असाइन ओनली टू दैट पर्टिकुलर यूजर, और वो उसी यूजर के लिए ओपन होता है। ये मैंने अच्छे से आप लोगों को स्टार्टिंग में जब मैंने फील्ड स्टेटस फिजिकल ईयर वेरिएंट समझाया था तो ये एक्सप्लेन किया था, करेक्ट? तो नोबडी कैन मिसयूज द ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो अब आप ये सोचो कि सपोज अगर मैं 1 अक्टूबर ही लेती हूँ, तो जो एंट्री जिस दिन आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो ना, ये वो डेट लेगा डेफिनेटली। अगर सपोज आज की डेट में अगर आप पोस्ट कर रहे हो, तो ये सिस्टम ही तो पिक करेगा ना। अब सिस्टम क्या चीज पिक करेगा, आज की डेट पिक करेगा। तो अगर आप आज की डेट में से फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर में उस एम्प्लॉय को याद आया कि अच्छा एक 26 सितंबर का एक ट्रांजैक्शन था, इनवॉइस था, मैं पोस्ट करना भूल गया या भूल गई, सो ही और शी विल व्हाट डू, ये वो इनवॉइस को वो अभी रिकॉर्ड करेंगे एसएपी में, दे विल पोस्ट द इनवॉइस नाउ। सो वो जो एंट्री, वो जो जिस तारीख को वो पिक करेगा ना, वो वो जो डेट होगा वो होता है एंट्री डेट। सो एंट्री डेट अलग हो सकता है, और एंट्री डेट को आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है, आपने कुछ उसमें एंटर नहीं किया, वो सिस्टम जनरेटेड है। और प्लस ये भी है कि जो हमारा वेंडर है, लेकिन वो वेंडर कब से काउंट करेगा, वो पोस्टिंग डेट से काउंट करेगा। वो इट डिपेंड्स कि हम उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बट रियल टाइम में मोस्टली हम या तो डॉक्यूमेंट डेट लेते हैं या पोस्टिंग डेट लेते हैं, करेक्ट? सो मेनली पोस्टिंग डेट से ही काउंट किया जाता है 30 डेज। तो वेंडर के अकॉर्डिंग तो उसका ड्यू हो जाना है 26 अक्टूबर 2024। डजेंट मैटर वेदर आपने सिस्टम में कब डाला, वो मुझे मैटर नहीं करता। मैंने तो, मुझे पता चला आप लोगों को इनवॉइस 26 सितंबर को यू गॉट माई इनवॉइस, तो माई 30 डेज विल be calculated from 26th of September. So this is the difference between document date, entry date and the posting date. Hope you all remembered. Hope you all understood कि document and invoice date होता है, जैसे इस केस में हो गया 25 of September, ठीक है? इस केस में पोस्टिंग डेट क्या हो गया, 26 of September, एंड इस केस में एंट्री डेट हो गया 1 October. So mainly entry date is what it is used just for tracking the transaction. ठीक है, कि आप ये बस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहा है कि ये कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट को। इट इज जस्ट ट्रैकिंग योर ट्रांजैक्शन दैट यू हैव पोस्टेड ए पर्टिकुलर इनवॉइस डेटेड और 25 सितंबर ऑन 1 October. बट जो इम्पैक्ट करेगा ना, वो ये पोस्टिंग डेट है। व्हाई? बिकॉज द वेंडर विल कैलकुलेट इट्स 30 डेज फ्रॉम दिस पीरियड। गॉट इट? एंड नो डिफॉल्ट क्या होता है? नो डिफॉल्ट होता है कि सपोज कभी कभी क्या होता है ना, कि हम नहीं चाहते हैं कि सिस्टम खुद से पिक करे, ऑटोमेटिकली पिक करे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में जब यूजर मैनुअली एंटर करता है ना पेमेंट टर्म्स को, ऑटोमेटिकली पिक करने का इंस्ट्रक्शन नहीं हो, no automatically triggered when user manually gives the terms of payment, user manually enter टर्म्स ऑफ पेमेंट, उस सिचुएशन में हम नो डिफॉल्ट को सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत कम होता है, बट कभी कभी कुछ ऐसे इन्वॉइसेस होते हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि सिस्टम इसको ट्रिगर ना करे, हम खुद ड्यू डेट देना चाहते हैं, हम खुद एंटर करना चाहते हैं टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो उस सिचुएशन में हम नो डिफॉल्ट दे देंगे। कैसे, वो भी मैं एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दूंगी। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड ये चारों कॉन्सेप्ट। तो जब आप टर्म्स ऑफ पेमेंट लिखो
लिखोगे ना तो डेफिनेटली ये आपसे पूछेगा कि आप बेसलाइन डेट क्या चाहते हो, मतलब आप क्या चाहते हो कि आपका ड्यू डेट कहाँ से कैलकुलेट करें हम, पोस्टिंग डेट से, डॉक्यूमेंट डेट से या एंट्री डेट से। एज ऑफ नाउ एंड इन एवरी एग्जांपल लेट्स कीप इट पोस्टिंग डेट, मेनली पोस्टिंग और डॉक्यूमेंट डेट ये यूज होता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू कम अक्रॉस इनवॉइस डेट एंड डॉक्यूमेंट डेट बोथ आर सेम। ठीक है, पोस्टिंग डेट पे क्लिक कर लेंगे। नाउ कैन यू सी हियर नंबर ऑफ डेज हम क्या करेंगे 30, क्योंकि 30 हम चाहते हैं ना कितने डेज के अंदर ड्यू हो, 30 डेज के अंदर ड्यू हो। एंड नाउ यू सी हियर ये कैसे चेंज हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, जस्ट प्रेस एंटर। आई हैव टू अगेन लॉग इन। OBB8, just press enter. New entries, give your terms of payment ZE30. In my case I want ki baseline date means due date to be calculated from posting date. Number of days I will keep it as 30, and now you see the explanation, it will change automatically. ठीक है, see, within 30 days due date, ठीक है, just by giving this instruction SAP ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर लेता है कि क्या मतलब है, मतलब हमारा यही है विद इन 30 डेज हमारा ड्यू होना है। इफ यू वांट यू कैन कॉपी एंड पेस्ट द सेम थिंग हियर। एंड ऑन एक्सप्लेनेशन मींस ओन एक्सप्लेनेशन, मतलब अगर आप खुद अपने कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो कि इनवॉइस ड्यू इन 30 डेज, तो आप खुद का भी दे सकते हो, और एल्स यू कैन कॉपी पेस्ट द सेम थिंग। ठीक है, हो गया डन। जस्ट कंट्रोल एस एंड जस्ट सेव इट। अब है ना, ये जो ZE30 है ये हम किस वेंडर के लिए ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं वेंडर 7001 के लिए, करेक्ट। जो कंडीशन वन मैंने एक्सप्लेन किया था ना, तो कंडीशन वन, चलो एक शीट और ओपन कर लेते हैं। तो कंडीशन वन में क्या था, नॉर्मल टर्म्स ऑफ पेमेंट, नॉर्मल टर्म्स ऑफ पेमेंट, नॉर्मल टर्म्स ऑफ पेमेंट में हमने क्या किया था, इसमें ZE30 डेज ले लिया, पहला कंडीशन। ठीक है, फॉर वेंडर, वेंडर कौन है हमारा, अभी एक ही वेंडर है 7001, करेक्ट। वेंडर 7001 के लिए ZE30 डेज, ड्यू डेट हो रहा है 30 डेज के अंदर, ये हमारा पहला कंडीशन है, फाइन। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से वेंडर में के मास्टर डेटा में हमें ये ZE30 मेंशन करना होगा, अदरवाइज वो ट्रिगर कैसे करेगा। तो हम क्या करेंगे, नाउ कम टू स्लैश एंड SK02 फॉर एनी एडिट और चेंज, वी कम टू SK02, write down here as 7001, company code, your company code is ZE89, and I will not open all the fields, why unnecessary। पेमेंट टर्म्स मुझे पता है कि ये कंपनी कोड डेटा का पार्ट है, जस्ट प्रेस एंटर एंड हियर यू विल राइट एज ZE30। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखोगे इट्स आस्क कि क्या ये एडिटिंग सेव करना चाहते हो, यस, एंड जस्ट इट इज सेव्ड नाउ। अब हम एक्चुअल में चलो पोस्टिंग करते, स्लैश एन FB60 में। अब देखना ये कैसे ऑटोमेटिकली पिक करता है, 7001, ठीक है, जस्ट डू योर नॉर्मल। नाउ चलो वैसे तो मैं सेम ही आज तक डालती आ रही थी, करेक्ट, इनवॉइस डेट एंड पोस्टिंग डेट, बट चलो सिंस यू ऑल नो कि मैंने है ना बेसलाइन डेट कब से कैलकुलेट किया, पोस्टिंग डेट से, तो चलो चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ इनवॉइस डेट, चलो मैं डालती हूँ 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर, अमाउंट आप लिख लो 2000 रुपीज, GL अकाउंट आपका क्रेडिट परचेज 2000 रुपीज। नाउ यू सी ये कैसे ऑटोमेटिकली पिक करेगा 30 डेज, खुद से ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा, और कब से करेगा, फ्रॉम द पोस्टिंग डेट, नॉट फ्रॉम द इनवॉइस डेट। ठीक है, इनवॉइस को वो नहीं देखेगा, क्यों, क्योंकि हमने बेसलाइन डेट कहाँ से कैलकुलेट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है, पोस्टिंग डेट का। जस्ट प्रेस एंटर, नाउ कम टू पेमेंट, can you see here, ZE30 ये automatically pick कर लिया, and it has calculated from 3rd of October 2024. Why 2nd of 11? Because October is what?
31 days, करेक्ट। तो उस हिसाब से हमारा ड्यू 30 डेज कब ड्यू हो रहा है? 2nd of November 2024। क्लियर, सिंपल। नाउ यू कैन सिमुलेट इट एंड पोस्ट इट, correct? And once you open your FB L3N slash n FB L1N, sorry, and execute it, can you see here? Due date, not due. Why not due? Because इसका due कब होगा? इसका due होगा हमारे when here you can see only the post document date. Let's इसका थोड़ा सा editing कर लेते हैं so that हमारा ये clear picture हो जाए. Sorry, come to this, right? Change layout. And can you see here the posting date somewhere? Here the posting date. तो document date के बाद चलो posting date mention कर देते so that हमें clear हो जाएगा. ये हमारा posting date है. और क्या due date भी होता है क्या इसमें option? Is there is any option of due date as well? Just check it. Can you see here net due date? The net due date हम posting date के बाद लिख कर लेते हैं. मैं बस समझाने के लिए आप लोगों को कर रही हूँ. नहीं, posting date यहाँ रखो. posting date के बाद करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो and just copy it, and here you can save it. Just save your layout. You have your own layout as well. तो या तो आप उसको सर्च कर लो. I remember I have created one, right? It was what? Slash ZD89. It was something like that. I didn't remember actually. Layout, अच्छा, layout save. There was a layout. Hope you all remembered. And मैंने बोला भी था कि layout हमेशा कैसे save होता है? Layout हमेशा save होता है slash से, है ना? और मैंने ये देखो Z89 था ना, मैंने इसी में अपने जो कंपनी कोड का लेआउट सेव किया था उसमें मैंने सेव कर लिया. फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड इट. डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग डेट ये है, और नेट ड्यू डेट हमारा 2nd of November है. तो उस हिसाब से क्या ड्यू हुआ है हमारा ये इनवॉइस? नहीं हुआ, राइट? सो इट्स ए नॉट ड्यू. Now even one thing I have to explain you कि अगर say for example, ठीक है, ये हो गया. अब अगर हम ये तो चलो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, तो मैंने ये कर दिया. अगर आप इनका पेमेंट करना चाहो तो पेमेंट का क्या है? /n/f-53. लेट्स सी. 2000 था. अभी का जो इनवॉइस है ना, मैं उसको क्लियर करना चाह रही हूँ. ठीक है, डॉक्यूमेंट सिमुलेट एंड आई हैव क्लियर्ड इट. ये मैंने एक टर्म्स ऑफ पेमेंट का कंडीशन समझाया. वो टर्म्स ऑफ पेमेंट मैंने आप लोगों को शो कर दिया कि कैसे वो ड्यू डेट कैलकुलेट करता है. एंड जिस दिन वो ड्यू होगा हमें वो इनवॉइस की पोस्टिंग पेमेंट करनी होगी, है ना? इट विल ट्रिगर ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऐसा होता है ना, सिस्टम में ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो जाता है कि जैसे ही ड्यू हुआ वेंडर को पेमेंट जाना चाहिए. और एल्स कभी कभी डेफिनेटली जैसे ड्यू हुआ you will get a notification that particular vendor amount invoice amounting to rupees is due on this day, so that you be available with all the requirement, all the cash, needed cash, and so that you can make the payment within the time period. करें, बट मुझे आप लोग को हर एक कंडीशन समझाना है एंड आई डू नॉट वांट कि आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने अभी जो एक कंडीशन समझाया वो इनवॉइस भी मैंने जनरेट किया, ड्यू डेट भी आपको शो कर दिया कि कैसे ट्रिगर होता है, एंड उसका मैंने पेमेंट भी कर दिया. अब एक चीज और मुझे समझाना है आज के क्लास में, वो ये है कि SK02 अब आप करो, ठीक है? एंड आप एक काम करो, पेमेंट ट्रांजैक्शन को हम वापस से 0001 कर देते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से इसको 0001 मतलब सेम डे ये ड्यू होना है. FB60 आप करो, पोस्ट इनवॉइस, अनदर इनवॉइस, ठीक है? दिस टाइम आई विल राइट अनदर, मतलब सेम इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, ठीक है? इसमें आप चाहो तो अलग भी लिख दो, बट मैंने 0001
ऑलरेडी जो प्री स्टैंडर्ड एसएपी का जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और बस आप लोगों को मुझे एक चीज सिखाना है, तो इसलिए मैंने सेम ही रख दिया, इनवॉइस डेट एंड पोस्टिंग डेट। करेक्ट। सो अब आप ये देखो कि अब आप सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली द डेट इसको क्या पिक करना चाहिए, 3/10/2024, और ड्यू डेट भी सेम होगा बिकॉज मैंने वेंडर मास्टर डेटा के पेमेंट ट्रांजैक्शन में 0001 as a terms of payment change किया, and 0001 is what due on the same date, right? तो ये देखो ट्रिपल ये और ड्यू ऑन द सेम। अब मैं क्या करूंगी ना, मैं यहाँ पे जाके ZE30 करती हूँ, एंड नाउ यू जस्ट सी प्रेस एंटर। It says आप टर्म्स ऑफ पेमेंट चेंज कर रहे हो, एंड इट इज जस्ट गिविंग यू अ वार्निंग मैसेज, यस आई एम चेंजिंग इट, एंटर। एंड कैन यू सी ZE30, जबकि मैंने मास्टर डेटा में क्या किया था, 0001 लिखा था, बट वो मास्टर डेटा में जो सेटिंग किया है SK02 में आपने, ये वो इस चीज को भी इग्नोर करेगा, ये प्रायोरिटी देगा आपके इनवॉइस को कि आपने इनवॉइस में कौन सा डेट डाला है। अगर ये 0001 होता, वैसे ये 0001 ही ट्रिगर करता, क्यों, क्योंकि इस वेंडर मास्टर डेटा में हमने, इसके वेंडर मास्टर डेटा में पेमेंट टर्म्स हमने 0001 ही डाला है। लेकिन सेफ, और कभी कभी क्या होता है, ये मैं आने वाले क्लास में भी आप लोगों को समझाऊंगी, कभी कभी है ना, ड्यू टू सम अर्जेंसी हम नहीं चाहते कि हम वेंडर मास्टर डेटा में चेंज करें, क्योंकि उस पर्टिकुलर वेंडर का से सेम डे ही ड्यू होना है, और अक्सर हर ट्रांजैक्शन ही सेम डे ड्यू होना है। लेकिन कभी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर ऐसा ट्रांजैक्शन आ गया जिसमें हमें अब 30 डेज चाहिए, मतलब जिसका ड्यू डेट 30 डेज का है उस वेंडर के लिए, लेकिन हमेशा सेम रहता है। तो जब हमेशा सेम रहता है तो हम क्यों फिर उसके मास्टर डेटा को चेंज करें, वो तो हम सेम ही रहने देते हैं। करें, क्योंकि ऐसे और ज्यादा गलती हो जाएगा कि आप एक ट्रांजैक्शन के लिए अगेंस्ट ऑल द ट्रांजैक्शन आप इसके मास्टर डेटा को चेंज कर रहे हो, और उस पर्टिकुलर के लिए अगर आप सपोज ZE30 लिख देते हो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, से इसी ट्रांजैक्शन के लिए, और बाकी फिर आगे आने वाले टाइम पे जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका फिर सेम ही ड्यू डेट होना है, तो आप बार बार चेंज करो यहाँ आके, मतलब बार बार क्या, एक बार ZE30 करना है, फिर आप आओ, फिर 0001 करो, फिर जाके फिर से पोस्टिंग करो, तो देयर कैन बी चांस ऑफ एरर, राइट, कि आपका, से फॉर एग्जांपल एक कोई ट्रांजैक्शन है, आई एम टेलिंग देयर इज ट्रांजैक्शन वन फॉर ओनली 30, जिसका ड्यू डेट है 30 डेज का, ठीक है, ड्यू डेट इज 30 डेज, एंड रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जितने भी हो उस पर्टिकुलर वेंडर के लिए, इस वेंडर के लिए, वो हमारा सेम ही है, 0001 ही है, से फॉर एग्जाम्पल 0001 है और द सेम डे ड्यू हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब मेजरली हर ट्रांजैक्शन सेम डे में ड्यू हो रहा हो, और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जो सिर्फ 30 डेज का है ड्यू डेट होना है, सिर्फ ओनली वन ट्रांजैक्शन और टू ट्रांजैक्शन, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो क्या आप उसके मास्टर डेटा को इम्पैक्ट करोगे या चेंज करोगे? सपोज अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया जो 30 डेज का ड्यू होना है, आपने यहाँ पे चलो 30 डेज लिखा एंड यू हैव सेव इट, ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होना है जो सेम अब नॉर्मल ड्यू डेट पे होना है, विच इज 0001, जो सेम डे ड्यू होना है, और आप गलती से आपने मास्टर डेटा में चेंज नहीं किया और आपने ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दिया, और आपने चेक भी नहीं किया पेमेंट में जाके, एंड आपको याद नहीं, आपको लगा ये ऑटोमेटिकली पिक किया होगा, सही पिक किया होगा, एंड यू पोस्टेड इट, एंड से यू हैव पोस्टेड मेनी ट्रांजैक्शन अनअवेयर अबाउट कि एक्चुअल मास्टर डेटा में तो आपने चेंज किया ही नहीं है, तो कैन यू सी व्हाट ए बिग ब्लंडर यू कैन मेक? करेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में जब हार्डली एक दो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे वेंडर का हमें नॉर्मल जो टर्म्स ऑफ पेमेंट से अलग टर्म्स ऑफ पेमेंट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके इनवॉइस में भी जाके चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसका किया था, हम इसका क्या था, 0001 था, जस्ट कंट्रोल एस। अब हम क्या करें, हमने वापस से, चलो एक बार फिर से मैं आप लोग को शो कर देती हूँ FB60, ठीक है, हमने क्या किया, वापस से हम गए,
4000, 4004, 4000 and just press enter. Come to payment and it अभी इसके लिए बस only for this transaction 30 days है तो आप यहाँ के change कर सकते हो. It is completely फाइन. ठीक है. जब ऐसे कंडीशन हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा आपको मास्टर डेटा में जाके बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है. एंड एसएपी ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द टर्म्स ऑफ पेमेंट विच इज मेंशन्ड इन your invoice, not in the master data. Master data में 0001 है but still SAP ने किसको प्रायोरिटी दिया? इनवॉइस के डेट को प्रायोरिटी दिया. So always remember terms of payment always SAP gives priority to the invoice date. दिस डेट इनवॉइस डेट मीन्स ये जो FB60 जब हम इनवॉइस पोस्टिंग कर रहे हैं उस वक्त जो हम टर्म्स ऑफ पेमेंट मेंशन करते हैं ना तो प्रायोरिटी हमेशा इस डेट को मिलेगा ना कि वो डेट ना कि वो टर्म्स ऑफ पेमेंट जो हम मास्टर डेटा में मेंशन करे हैं. करेक्ट हो गया? क्लियर है? तो ये एक चीज कंडीशन था जो मुझे आप लोग को एक्सप्लेन करना था. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर कंडीशंस जो मैं आने वाले क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. सो and yes, hope I have given few of the dumps related to the SAP certification exam, and I didn't give the answers of those terms. Correct? मैंने बोला था आप लोग थोड़ा खुद effort लगाओ, and then later I will give all the answers. So I have posted in my community post all the answers of द गिवन डम्प्स. आप प्लीज चेक कर लेना. मैंने वापस से इतने डिटेल में क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लिखा. जो भी उसके रिक्वायर्ड आंसर्स थे आप जाके चेक कर लो. कम्युनिटी पोस्ट में मैंने उन पांचों डम्प्स के या क्वेश्चंस के मैंने आंसर सबमिट कर दिए हैं. होप आई एम श्योर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो फ्यू थिंग्स आपने डेफिनेटली आप लोगों ने करेक्ट किया होगा. स्टिल इफ देयर इज सम मिस्टेक डन बाय यू while selecting the answer, please go and check those answers. ठीक है? Thank you and have a good day.